students, how was your class 10th result? If the result is nice, then you have to study it well, and the students who are interested in maths stream, those will know I am explaining the first chapter of maths. Chapter 1 is sets. Okay. First of all, you know what is the sets. Clear? So any well-defined collection of objects which are the different from each other and can be seen or think is called a sets. Means sets is that set एक प्रकार का ऐसा कलेक्शन होता है, संग्रह होता है जो डिफरेंट तो होता है, लेकिन फिर भी उसके क्वालिटी को देखते हुए उसे एक ग्रुप में रखा जाता है, इसे सेट्स या समुच्चय कहते हैं. ओके. और इसे देखा भी जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, थिंक किया जा सकता है. देन दैट्स वी से द सेट्स. इन दिस वे फाइनली यू कैन से दैट एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are different from each other, different होते हुए भी can be seen or think is called as sets. उसे देखा और सोचा जा सकता है, उस तरह से उसे एक ग्रुप में रख करके जो तैयार किया था, that we say sets. Here the example, V, capital V is the sets of vowel in English alphabet. So then how we will write? We will write in curly bracket the sets of vowel. Okay. So in English alphabet there has given the 26 letters. So in 26 letters vowel has given 5 and consonant has given 21. So in this way vowel has given A, E, I, O, U. So this is the sets of vowel. These are all the elements of the sets V. Okay. That is example of the sets. Now students, you have to know now form of sets. अब आपको ये जानना है कि sets के कितने form होते हैं. Clear? So now here the given first has given the tabular form or roster form. पहला जो form है उसके दो नाम हैं, टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं. ओके. इस टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में देयर हैज गिवन n इज द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. n जो है सेट्स है जिसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट. क्लियर? तो इन दिस वे when we will represent, then that we say the tabular form or roster form. Clear? Now second has given the set builder form. Okay. So set builder form, the form which is listed the element according to their property. अर्थात वह फॉर्म जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी के अनुसार लिस्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्टेड. अंडरस्टूड? देन दैट वी से द सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. नाउ यू नो हियर द गिवन P is the sets of the elements. The name of element is 2 3 5 7 11 13 17. These are the elements. First of all, we will see the property of the elements. So here they given 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. These are all. You observe and think that which type of number has given this. आपको पहले ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि किस प्रकार का नंबर है. तो इसे देखने से लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है. ओके. Because 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, these are all the prime number.
तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिस्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे x such that x is a prime numbers smaller than 18, यानी ये x क्या है, ये प्राइम नंबर है जो 18 से कम है। Here the given 17, तो हम लिखेंगे less than 18। Okay students, तो in this way now you have studied tabular form or roster form, and second the set builder form। Okay, now next you will study about now students, the third sets has given empty sets or null sets or the void set। in this way it has given the three names, इसके तीन नेम दिए गए हैं, empty set, null set और void set। these are all the sense of empty the sense of nothing, empty means खाली, null and void, these are all the one name of the empty set। that definition has given a set which has no any element at all, वह सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, अर्थात शून्य हो, खाली हो, then that we say the empty set or null set or the void set। okay, it is denoted with the file, it is denoted by the file, that we say file, इसे हम कहते हैं फाइल, PHAI। ओके, फाइल बोलते हैं। क्लियर? इट्स एग्जांपल हैज गिवन इन कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to n and 1 is smaller than x and x is smaller than 2, its result will be 5, its result will be 0, शून्य, nothing, because now you see here x जो है एलिमेंट है, अंडरस्टूड, और ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी कि x क्या है, नेचुरल नंबर से है, और x ऐसा नेचुरल नंबर से है जो 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो here you can think, यहाँ तुम सोच सकते हो कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आपको है क्या जानकारी में? नहीं जानकारी में, इसीलिए इसे कहा गया है इट्स रिजल्ट विल बी एम्प्टी। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 5 बनेगा, 5 मीन्स शून्य, खाली, क्योंकि 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कोई नंबर आपको पता नहीं है, और इसलिए इसे हम कहेंगे 5। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ नल सेट्स और द वाइड सेट्स। ओके, नाउ द फोर्थ हैज गिवन फाइनाइट सेट, whom we say the finite set, a set in which the process of counting of elements comes to an end, अर्थात वह एलिमेंट जिसका सेट बनाया जा रहा है और उसका अंत हो जा रहा है, उसकी समाप्ति हो जा रही है, then that we say the finite set। clear? now example here I have given x such that x belongs to natural number n and x is smaller than 500। अब देखो यहाँ पे x जो एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 500 से लेस है, तो 500 से लेस एक एन इंड हो गया ना, एक डिफिनेशन जो कहता है कम्स टू एन इंड, जिसका एक अंत हो जाए, समाप्त हो जाए,
तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। यानी x इज स्मॉलर देन 500, यानी 500 से पहले की ही वैल्यू है x का, अर्थात हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 499। x की वैल्यू 499 से नीचे की तरफ, दैट इज लिमिटेड, सीमित है, यानी एक एंड है। ओके, देन दैट वी से द फाइनाइट सेट। क्लियर? अदर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अगर सेट बनाए जाएं तो ये भी हमारा डेफिनेट है, निश्चित है कि कितने स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक लिमिटेड है, यानी इसका भी एक लिमिट है, इसका भी एक एंड है। ओके, क्लास में अधिक से अधिक मान लो 100, 2 सेक्शन है, और एनी वन, मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, जितना भी स्टूडेंट्स है वो उसका एक लिमिट है, दैट विल बी काउंट इजिली। ओके, उसे हम आसानी से गिन सकते हैं और उसका सेट बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट इज द फाइनाइट सेट। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th, नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, स्कूल के कैंपस में कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी काउंटेबल है। ओके, तो जो काउंट किया जा सके उसका एक एंड हो जाए, देन दैट वी से फाइनाइट सेट। नाउ फिफ्थ हैज गिवन द इनफाइनाइट सेट। ओके, यानी अनिश्चित, यानी उसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित, उसका कोई एंड का कोई अंत नहीं है। अंडरस्टूड? देन दैट वी से द फाइनाइट सेट। According to their definition, a set in which the process of counting of elements never comes to an end, अर्थात उस एलिमेंट जिसकी हम सेट्स बना रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई एंड नहीं हो रहा है, then that we say infinite set। क्लियर? उसे हम infinite set कहते हैं। Here the given example, very carefully you listen. X says that X belongs to natural number, यानी जो X है एलिमेंट वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत है। तो अब यहाँ पे X को कह रहा है कि X इज ग्रेटर देन 50, ये साइन जो है ग्रेटर देन की है, X इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि x जो है 50 से ग्रेटर है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 51, 52, 53, 54, 55, इस तरह से 100 में जाएगा, 1000 में जाएगा, लाख में जाएगा, करोड़। अंडरस्टूड? इन दिस वे इट विल बी गो फर्दर, और इसका कोई अंत नहीं है x की। सो वी कैन से दैट इज इनफाइनाइट सेट। और जबकि फाइनाइट में यहाँ देखो लिमिटेड है, लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 500। अंडरस्टूड? 500 से कम है तो ये लिमिटेड हो गया, 1 से 449 तक इसका एंड हो गया। तो एंड होने की वजह से इसे फाइनाइट कहा गया है, इसका एंड नहीं हो रहा है x की, ये सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में नंबर जाएगा, इसलिए इसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर आई विल एक्सप्लेन, टुमारो आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टुडे यू नो ओनली दीज आर रूल्स, you must take screenshot of that rules and you will revise, and tomorrow again I will solve the exercise 1. Okay.